السلام علیکم. وعلیکم السلام. خطیب الہند مفتی عقیل رضا صاحب مجاہدی خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ. اللہ کرم فرمائے. کہاں کٹک میں کہاں ہے؟ بالاسور میں. بالاسور میں. حضرت یہ ایک مسئلہ پڑ رہا ہے اندور میں اچھا. کہ مسجدوں سے بورڈ ہٹاؤ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی نہیں آئے گا، تو اس پر بڑا وہاں پر وہ ہلا ہے، گرما گرمی کا ماحول ہے کہ صاحب ہٹائے جائیں. کچھ چاہتے نہیں ہٹائے جائیں، دونوں طرف کا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا. تو اب یہ بھی بات آئی کہ اگر عرب والے بھی یہی سب کام کرنے لگے کہ یہاں پر بریلوی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، تو مشکل ہو جائے گا صاحب. اچھا ایک کام کہ ایک بات بتائیے، آپ ہر جگہ اکثر جگہ آپ فون لگاتے ہیں، سب سے بات چیت آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. آپ تو بریکنگ نیوز بنے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اکثر علماء سے جو خبر آتی ہے کہ آپ اکثر علماء خطیبوں کے پاس، علماء کے پاس آپ فون لگاتے ہیں، کال کرتے ہیں. ماشاءاللہ پہچان گئے آپ صاحب. آپ کی نظر بہت وسیع ہے، آپ پہچان گئے. نہ ہماری نظر اسی کی بات نہیں ہے. یہ فیض ہے آپ کے اوپر، فیض ہے صاحب، علماء کرام کا فیض ہے آپ کے اوپر. جی جی، نظر کو وسیع رکھنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. یہ دور اندیشی ہے صاحب آپ کی، وسیع نظری ہے کہ چاروں طرف نظر رکھتے ہو آپ. فتنوں کا یہ دنیا فتنوں کی جو ہے یہ آگے حضرت کو میں دیکھ چکا ہوں. نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کافر کہا یہ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے. وہ تو معلوم ہے، لیکن محدث کبیر خطا پہ ہے. خطا پہ ہے وہ، یقیناً بہت بڑی خطا پہ ہے، چھوٹی تھوڑی. انہی کو تھوڑی مفتی غلام محمد ناگپوری نے کیا کیا تھا، ان کو بھی تو کفر کا فتویٰ لگایا ان پر بھی. صرف بابا جان نسیم سرکار کو انہوں نے جو ہے آپ یہ کیا کہتے ہیں کفر کا اعتقاد انہوں نے رکھا، نہ لوگوں کو جو ہے کہا ہے، بلکہ اور بھی دیگر علماء کے ساتھ انہوں نے یہ ایسی جنہوں نے حرکتیں کی ہے. خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے نا مفتی غلام محمد ناگپوری. چلو نسیم ملت تو تھوڑے الگ ہیں. ناگپور والے، ناگپور جی. اتنے بڑے مفتی تھے صاحب، پرہیزگار باعمل عالم تھے، ان کو بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا ان پر بھی. جس عالم دین کو مفتی اعظم ہند کی جو نگاہ عنایت ملی ہو، خدمت 20 سال خدمت کیا صاحب، 20 سال کم بیش. ہاں معلوم ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے، اب ان دنیا سے جانے کے بعد تب ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا. صحیح بات ہے حضرت. مہاراجا شریف سے اور ان سے آپس میں بڑا بڑویت کر دی. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنیت کو ایک کرنے کے لیے جتنی کوششیں لگانی پڑے لگاؤ، یہ حکم ہے، یہ شریعت کا بھی. یہ بہت اچھی، بہت اونچے بات کی توقیر رضا صاحب سلطان مجاہدی. میں انہیں کہتا ہوں حضرت توقیر رضا صاحب، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سنیت ایک ہو. رسول کی امت کو جو توڑ رہے ہیں نا، جو نکاح، کبھی تو زندگی میں گھسانے کی توفیق نہیں ہوئی. ارے صاحب کتنے وہابیوں کو، کتنے دیوبندیوں کو انہوں نے سنی کیا ہے. ارے اور سنیوں کو کافر بنا دیا. ہاں، اکثر بیشتر لوگوں کو. جبکہ میں دیکھتا ہوں نسیم ملت بہت بڑے مقبول شخص ہے. مجاہد ملت کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا، شاید آپ نے دیا تھا کہ مجاہد ملت نے ان کو مانا ہے. ملت ہم سب کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اس کی دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ الحمدللہ جو وہ کہتے تھے کہ غوث پاک فیصلہ کریں گے انشاء، الحمدللہ انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا. کون سے لوگ آئے تھے رضوی اظہری میاں کے مرید جن کو دھکے دے کے بھگایا تھا؟ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، وہ کیا معلوم آپ بھی تھے یا کوئی اور تھے آپ کے ساتھی؟ وہ مناظرہ میں دیکھ رہا تھا یہ نسیم ملت کے بارے میں، تو وہ کفر کا فتوے پر اڑا ہوا تھا کوئی میں مناظر تھا. وہ تو کمینہ، اس کو تو ایک دم دھکا مار کے مسجدوں سے نکالا بھی گیا ہے. وہ کیا نام تھا رضوی مولوی، وہ کیا نام تھا اس کا جو اظہری میاں کا مرید ہے، کون تھا رضوی؟ یہی سب جو سلسلے میں جو بڑھ گئے نا، ایسا لگتا ہے کہ سنیوں میں جو 73 فرقہ ہو گئے. بہت تکلیف کی بات ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ کئی بریلیوں میں حضرت میں 12 بریلیوں میں 72 فرقہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرمائے، مالک ایمان و عقیدے. جبکہ میں حضرت میں جانتا ہوں کہ حضرت نسیم ملت جو ہے ان کا خدمات بہت زیادہ. تھوڑی بہت غلطی ہے تو دیکھو انسان سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے. وہ ایک مجذوب شخصیت تھی ان کی ذات. اب یہ عورت کا بہانہ بنانا کہ عورت خدمت گزار تھی، تو عورت تو بابا جان سرکار ملت مخلوق خدا کی خدمت میں ہمیشہ اپنی زندگی کو وقف کیا. اور آج کل کے مولوی ہو، بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، اگر پیسہ نہ دو تو دین کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کے تعلق سے سوچے گا نہیں. لیکن وہ بندہ ہے نسیم سرکار کہ انہوں نے زندگی بھر جو 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا. اچھا.
मगर उन्होंने जो खिदमतें की है सारी जिंदगी, आज उड़ीसा बंगाल उनसे जो इस कदर मोतक़िद हैं, क्यों? क्योंकि जो इंसान किसी जगह कुछ पाता है ना तो उसे वो कभी भूलता नहीं। अरे तो आपने तो साहब, मैंने सुनी आपकी तकरीर, आपने तो हिला के रख दिया इन लोगों को, आपके सामने आ नहीं सकते नसीम मिल्लत के खिलाफ वाले ये लोग। अरे भाई जो हक है आपके सामने तो हजरत मुहद्दिस से कभी नहीं टिक पाएंगे इस मसले में, कुफ्र के मामले में। कोई बात नहीं है, मुहद्दिस से कबीर अपनी जो है मामला जो भी हो, लेकिन इस मसले में नहीं टिक पाएंगे आपसे, क्योंकि आपने मसले में कोई भी तो आज तक सामना करने की जरूरत किसी ने नहीं किया और न कर पाएगा, क्योंकि बनी इसराइल कौम एक धर्मी के शिकार की बुनियाद पे जो तबाह बर्बाद हो गई। बेशक बेशक। कुछ ऐसी कौम है जो इनकी हर धर्मी ऐसी है कि सच को जानकर भी जो है इसे दबाने की कोशिश करते हैं। अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह इनके जाने के बाद में अल्लाह जो इनके साथ मामला करे तो फिर अल्लाह ही बताएगा। अरे हजरत, ये मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर जो फतवा लगाया बहुत बड़ा बवाल हुआ था, मुझे मालूम है। एक हो गया यूपी के साइड में ये मामला है, उड़ीसा में ये मामला है। इन्होंने जो है सुन्नियत का मतलब कि ठीका ले बैठा है, कौन सुन्नी है, यहीं से ये लोग जो डिसाइड कर देगा कौन जन्नती है। मुफ्ती कौसर हसन साहब के भी ये लोग खिलाफ हैं, जो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी के तरफदार है ना, मुफ्ती कौसर हसन साहब जी, वो काबिल आलिम है मुफ्ती कौसर हसन साहब तो जी। तो यहाँ तक के मौलाना जमाल साहब भी इधर ही है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब की तरफ। जी जी जी। अब इन लोगों ने ये टुकड़े कर रहे हैं, ये आप जो बता रहे हो फिरके की बात, ये बात सही है कि इधर आपको मालूम ही होगा नेपाल में जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको मुफ्ती जैश मोहम्मद मेरी सोच से परे है कि इतने तो जानते हैं कि अकायद के मसाइल तो समझते हैं, इतना तो इनको मालूम है कि भाई हम अकीदा का कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार हो, वो सुन्नी है, समझ लेना चाहिए। हाँ, जब तक के पूरा कुफ्र उसका कंफर्म ना हो जाए। बस मेरा कहने वाला, हम अकीदा अगर वो है, अगर गुनहगार वो शख्स है, सैयद हो या गैर सैयद हो या कोई भी हो। अरे उसकी मिसाल यजीद है ना, यजीद को कब काफिर कहा अल्लाह हज़रत ने? फिर वही बात है ना, उससे बड़ा यजीद से बड़ा खबीस कौन होगा? यजीद से बड़ा खबीस कौन होगा अभी दुनिया में? खबीस कौन होगा, जहन्नमी कौन होगा, हम सारे वर्ड उसको कहेंगे, मगर खुलेआम काफिर नहीं कहेंगे। काफिर नहीं कहता, और ये आजकल के सुन्नियों को सुकूत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। जितने भी बड़े बड़े गुनाह का जो है मुर्तकिब यजीद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काफिर नहीं कहेंगे। अब यहाँ अंदाजा यहाँ लगाइए, ये लोग इमाम आजम अबू हनीफा से भी बड़े हैं। अरे ये तो बस मुज्तहिद मुतलक हो रहे हैं, कोई जमदा शाही में पढ़ा है तो कोई घोसी में पढ़ा है। भी मालूम नहीं है कि क़ियास भी जो है तभी कबूल किया जाता है जब अपने इमामों के क़ियास पर वो चीज मवाफिक हो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ऊंचा मसला बताया आपने, बहुत ऊंचा मसला बताया। आप जितने भी क़ियास खुद ही अटकल लगा लें, आपकी बातें नहीं मानी जाएगी, नहीं हमारे इमाम मुज्तहिद की बात मानी जाएगी। बिल्कुल, जो बोलते हैं ना फला 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 फला, क्या है सब बात करना इन लोगों के ताल्लुक से जो है ना बिल्कुल जी नहीं चाहता। अरे हज़रत, आपने सुना होगा काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में किसी ने कहा था, कोई कहता था कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? आपने सुना होगा सर? तो फिर उनके खिलाफ फतवा देने की बात आई तो काजी साहब ने कहा नहीं, ऐसे फतवा नहीं दिया, उसे बुलाओ उस शख्स को। फिर कहा क्या कहते हैं, कहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्या मानूं, क्यों मानूं? तो क्या मतलब है इसमें आपका? कहा मेरी मर्जी हजरत, इसमें यह है कि नफ्स मुझसे कहता खा ले पी ले सो ले, तो मैं नफ्स से कहता हूँ मुखातिब हो गए, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? हाँ, वहाँ पे जो है बात मख्फी थी, बात को जो है एक मिसरा को छुपा कर रखा, एक मिसरा को इन्होंने मख्फी रखा। हाँ, ये है काजी शमसुद्दीन जौनपुरी। फतावे किसी को देना हो तो हर चीज पर जो है तदकीकी नजर होनी जरूरी है। अरे हजरत आला हज़रत खुद वाक़ई मैंने पढ़ा है कि मैंने तबीब हाज़िक की खिदमत में 7 साल लेकर ये फतवा नवीसी सीखी है, बहुत बारीक फन है। वो आला हजरत हैं। बताइए, आप इतने बड़े काबिल आलिम होकर 7 साल लिख रहे हैं और ये तो 2 साल में मुफ्ती बन के फतवा लगाने लग जाते हैं आजकल के मुफ्ती। भाई ये लोग अपनी जिंदगी ये लोग सोचता है कि हम ही लोगों को जो है लौहे महफूज से सारा इल्म मिल गया है। बताइए आप, जो करना है वो करना है, अब वो खैर करे, बस ये दुनिया में जब तक जीना है जी ले। हजरत मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने काजी ज़हीर साहब, आप जानते हैं मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़े आलिम है। हजरत मकाई ज़हीर साहब खलीफा मुफ्ती आलम हिंद इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम,
उनको उलमाए कौंसिल में बैठने से गुमराह ठहरा दिया मुहद्दिस कबीर ने कि इसके ये गुमराह है, और एक ने बोल दिया कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो फिर किसके पीछे नमाज होगी जब मुफ्ती आजम इनके खलीफा पीछे नहीं है, मुहद्दिस कबीर के पीछे होगी सिर्फ, और किसके पीछे होगी? उनके पीछे होगी। सही कहा आपने, और सही कहा आपने, बिल्कुल उनके पीछे हो जाएगी, सब लोग उनके पीछे पड़े। अरे सुन्नियत को इन्होंने जो किया है ना, अल्लाह खैर करे मालिक। साहब 3-13 करके रख दिया, टुकड़ों में बांट दिया है। आज बरकत भी अलग है, जैसे कलम की ताकत आ गई तो नाजायज फायदा उठाकर जो किए हैं, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। इनके लड़के खुद जामे अजहर में पढ़ के आ रहे हैं सुलह कुल्लियों के इदारों में, और वो सुलह कुल्लियों में बैठ जाए मुफ्ती काली रईस साहब तो उनके पीछे नमाज। मुहद्दिस कबीर का चेहरा देखेंगे ना, मतलब कि नूरानियत एकदम खत्म हो गई है। अरे साहब बिल्कुल, आप हजरत बहुत वसीम नजर, बहुत मुबस्सिर आदमी है इस मामले में, मुबस्सिराना आपका वो है। मैं ये देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। नहीं हजरत, आपने जो बात की बिल्कुल वो, मैं भी उसको गौर करता हूँ इन बातों को। आज सबसे बड़ी एक जात की मकबूलियत ये है कि उसके नाम से मखलूक खुदा उमड़ते हुए सैलाब की तरह दौड़ी आ जाए। आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुलाएं और मुहद्दिस कबीर को बुलाएं, क्या दोनों के नाम पर मखलूक खुदा किस कदर जमा होती है, अरे साहब दुनिया देख लीजिए। चेहरा भी उनका नूरानी लगता है, सलमान अजहरी साहब का लग रहा है कि कोई अरे बहुत बड़ी शख्सियत, पूरी वर्ल्ड में अगर मानी जानी शख्सियत है तो मुफ्ती सलमान अजहरी है। अरे साहब काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। हाँ भाई ना, वो एक हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की मकबूलियत को जानना हो तो मखलूक खुदा पर नजर करो। अल्लाह, मखलूक खुदा उसकी जानिब उसके नाम से किस कदर खींची चली आती है, ये देखो। आप मुहद्दिस कबीर को बुला लो, 5000 आदमी जमा नहीं कर पाएंगे। अरे बिल्कुल, बहुत ऊंची बात कही आपने, वो इनके शागिर्द लोग जमा हो जाएंगे। शागिर्द सलमान अजहरी साहब यंग आलिम है, उनका नाम से जो है 1 लाख आदमी जमा हो सकते हैं, है ना, आराम से। वो हजरत आए तो शायद नसीब मिल्लत के आए, वो है ना। हाँ, नसीब सरकार के हिमायत में है। अरे हमारे जामियातुल सिद्दीक में जो हमारे मदरसा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जलसा में। अरे ये तो हमें आज मालूम हुआ कि हिमायत में हजरत नसीब मिल्लत की दस्तखत भी है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये इन्होंने बिला वजह, ये कौन थे, ये हम्माद रजा मुरादाबादी है, इसने भी साथ कुछ बयान दिया है। ये तो जाहिल, ये मूर्ख कहीं का, हमारे बच्चों के मुकाबिल का नहीं है ये हम्माद रजा। एक निजामिया किताब पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखता। वो क्या कह रहा है कि जिस पर हजरत मियां साहब के दस्तखत नहीं होंगे जब तक फतवा नहीं माना जाएगा, ऐसे कुछ कह के गए थे शायद, क्या मालूम। तो हमारी वॉइस जो है वायरल हुई थी, सुने होंगे। अब वो मैंने सुना, आपकी तकरीर भी सुनी, आपने बहुत सारी बातें कर डाली, वो तो आपने। मैं एक हम्माद को अभी तो मतलब कि ये सुकूत इख्तियार किया हुआ है, मैं इसे जरूर लगड़ूंगा, बहुत जल्द लगड़ूंगा। अरे इसने तो ये कहा है कि जितने भी सैयद हैं कयामत में वो आला हजरत को ढूंढेंगे, इतना मुबालगा कर दिया इसने कि आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। यानी वो लफ्ज के ताल्लुक से जो है सैयद आले रसूल को मुख्तस किया है। नहीं, तमाम सैयद कहा उसने, लेकिन तमाम में कुल मुराद हो गए, उसने मुतलक कर दिया तमाम। वो तो गलत है, लेकिन वो लफ्ज जो सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने शायद के सैयद आले रसूल ही के ताल्लुक से नहीं, वो तो खाली एक उसने बहाना बचने का बनाया है। उसने कहा कि तमाम सैयद, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, सबके वो तो तमाम कहा था। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हजरत बहुत कुफ्र बकरा है। एक बार ये कहा कि फरिश्ता लंगड़ा था, लंगड़ा के चल। हाँ, सब कुछ जाने। अभी तक इसने तो न तौबा किया खुलेआम, तो ना तजदीद निकाह किया है, अल्लाह जाने क्या कर रहा है। नहीं, जो इनकी पार्टी में होगा वो कितने ही कुफ्र बके, उसको माफ है। अगर आपकी पार्टी का आप वो खुद एक सोचिए, कम इल्म इंसान जो असद इकबाल जो शेर पढ़ रहा था हज़रत हिंदा के ताल्लुक से, कम इल्म इंसान भी जो है समझ जाएगा कि भाई ये जो भी कुछ सहाबिया हो, सहाबा हो, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, उनके ताल्लुक से लान तान करना सबसे हराम करार दिया गया। एक छोटा बच्चा भी सुन्नी का जानता है। बिल्कुल। वो मुफ्ती कहलाता है, डिंगारा पीटा हुआ है, वहाँ पे वो फूल का हार चढ़ा रहा है उस शेर में। कौन मुफ्ती? समझने से कासिर हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी। ये सब बेवकूफी है। कौन? ये हम्माद रजा? हाँ, हम्माद।
अरे मुफ्ती थोड़ी है, तो बनावटी मुझे कैसे कैसे पेन के आ जाता हो तो पैसा मुफ्ती सबसे बड़ा शरीयत इस्लामिया में सबसे बड़ा ओहदा मुफ्ती का है। अरे साहब, मगर मुफ्ती ये सब मुफ्ती थोड़े हैं, मुफ्ती के मुफ्ती बने हैं ये। बेटा इनको दरसेगांव में बैठा दिया जाए तो नानी याद आ जाएगी। अरे साहब, फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा है और कह रहा है कि मतलब इसका कहना है कि देवबंद वाला अगर मुंह लगा ले तो उसको छुओ मत, फेंक दो। तो हजर अस्वद को फिर जाके क्या करेगा, चूमेगा नहीं क्या हजर अस्वद को? अरे ये पागल इंसान है, ये लोग जाहिल किस्म के इंसान है और कुछ नहीं है। ये तो फितना फैला रहा है साहब, फितना आवाम को लूट लिए। अब देखो ये मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्लिम साहब के लड़के जामे अज़हर में पढ़ के आए। अब इनसे पूछो किसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, किसका ज़बिया खा के आए हो? क्या हल्किया बयान दे सकते हैं कि हमने ज़बिया नहीं खाया वहाँ पर? अब ज़बिया खाने वालों की क्या पहचान की इन्होंने कि कौन है ज़बिया करने वाला, जब ये इतनी छानबीन करते हैं तो? और 4 साल का इन्होंने जुमा नहीं पढ़ा, जुमा पढ़ा तो किसके पीछे पढ़ा? वहाँ तो ज्यादातर फासिक लोग हैं, यानी दाढ़ी नहीं होती जामे अज़हर के उलमा की। आपको तो मालूम होगा, देख मैंने गूगल से देखा, दाढ़ियाँ भी नहीं है, पैंट शर्ट पहनते हैं साहब। हाँ मैंने तो देखा। हाँ तो जामे अज़हर के उलमा ये रवैया है, उनके जो है ये अंदाज भी है, और ये पहले जो शुरू से जो इन्होंने लिबास को इख्तियार किया हुआ है। हाँ वो सुलह कुल्ली है सर, जामे अज़हर वाले सब सुलह कुल्ली हैं। हाँ मुझे मालूम है, सबको पढ़ाते, सब कोई भी यार सबको मुसलमान समझते, सबको पढ़ाते हैं। चलो खैर वो तो अच्छी बात है उनकी, लेकिन ये जो फतवा लगा रहा है काली दही पर और आपके नसीम मिल्लत पर, ये अपने खानदान वालों को भी जो देखें वो कहाँ पढ़ के आए, अपने बेटे को देखें और लोगों को देखें जिनको ये मानते हैं खिलाफ। अब वो एक बलियावी है, बलियावी ने कह दिया था अशरफिया को कि ये अफ्ता वाले कितनी पिटाई हुई थी, कभी इन्होंने फतवा लगाया कुफ्र का, तौबा करवाई उससे? आज तक नहीं करवाई। अरे भाई इनकी दुकान की फैक्ट्री है, जब जिसके पास चाहे सौदा कर ले। हाँ हाँ, मतलब जो इनकी पार्टी का हो, कुफ्र बके कुछ भी बके, वो एक कौन सा बात जब आ जाए तो फिर बचाने के लिए बहुत में लगे रहते हैं, कैसे के बचा लिया जाए। दूसरे की बात आ जाए तो फिर फख्त में जो है कलम उड़ता है और दे मारते हैं सिग्नेचर। ये गुलाम जिलानी अजहरी है, लोडियाबादी में आज जेल में गया कर्नाटक में। ये नहीं समझते कि आपकी सिग्नेचर से कौम सुन्नियत किस कदर टूट रही है। अरे साहब बिल्कुल बहुत सही बात कही है। अशरफिया से जो मामला उठा, अशरफिया के खिलाफ जलसा कराया था ना इन्होंने, बलियावी जो आया था, बलियावी ने ये कहा कि ये अस्तबल जानवरों के बनने की जगह है। एक दीनी मदरसे को अस्तबल बता रहा है, उस पर ये फतवा नहीं लगा रहे। दोनों हजरात थे उस जमाने में, तो एक तो रुखसत हो गए ना, उन्होंने कभी तौबा करवाई ना कलमा पढ़वाया कि तुमने जानवरों के बनने की जगह क्यों बताई। लेकिन माल कुटाई तो करती थी लड़कों ने। तलबा ने मोहतरम साहब थोड़ा सा इजाजत दे। अच्छा साहब जज़ाकल्लाह, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ठीक है सर, ठीक। मेरी बात कहाँ पहुंचाई है? जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। ये हजरत ने फरमाया कि नसीम मिल्लत के बारे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी उन्हीं की हिमायत में है। यानी ये बात पब्लिक में, यानी जो वहम गुमान करते हैं ना कि उनके पास कुफ्र का फतवा है, तो मैं ऐसे कुफ्र का फतवा थोड़ी दिया जाता है कि मुहद्दिस कबीर ने कह दिया काफिर है तो वही काफिर है साहब, मुहद्दिस कबीर जिसे कहते हैं मुसलमान है तो वही मुसलमान है साहब। हमारे लिए कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, ये 4 चीज हमारे लिए बुनियाद है। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, बेशक सही फरमाया। ये 4 चीजों पर अगर हम किसी भी चीज को देखेंगे तब कोई हुक्म होगा। अरे मुफ्ती मुतीर रहमान साहब का ही मैंने देख लिया, वो आए थे, कहा कि जब कायल इनकार कर दे तो उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। उसी तरह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब भी हैं। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जानकार हैं, समझते हैं। और कोई भी जो है ना पढ़ा लिखा आकर जो गुमराह किसी को नहीं कर सकता। नहीं ये बता मुफ्ती, जब मुफ्ती रहमान ने जब साफ कह दिया कि अब इन पर कोई फतवा नहीं लगेगा, नसीम मिल्लत पर फतवा उठा दिया कि कायल जब इनकार करेगा तो उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगता है। बस ये शरीयत जब कहती है तो फिर इसे मानना ही जरूरी है। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब भी है, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब वो या तो कुफ्र पर होगा या तो गुमराही पर होगा। और उनकी तरफ वो भी तो है आले रसूल साहब, उनकी हिमायत में है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन है मुखालिफ, कौन है वो? हबीबी कोई दूसरा है। हाँ क्या नाम है वो जो मुखालिफ है नसीम मिल्लत के? गुलाम मोहम्मद साहब। हाँ वो मुखालिफ है। हाँ मुखालिफ है, उनके जो गिरोह, उनके मुरीदीन, उन्हीं के जो है नक्शे कदम पे चलकर देखना एक दिन ये 3 तेरा चूरा चूरा बर्बाद हो जाएंगे। जो मुखालिफ हैं उनके नसीम मिल्लत के मानने वालों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे भाई हम लोग जो है हजरत की लोगों की सुन्नियत के लिए जेल जाना पड़े जाते हैं,
लड़ना पड़े आपने तो लड़ते बहुत हैं। तकरीर की, मैंने तो आपकी सुनी है बहुत, आपकी तो जलाली बहुत ज्यादा जलाली तकरीर करते हो आप, जोश में आ जाते हो बहुत हम ज्यादा। लोगों ने नसीम सरकार की हिमायत में जेल में भी जाकर जो कदम रखा है। अरे आप तो मैं देखता हूँ जोश में बहुत आ जाते हो, थोड़ा कम जोश में आना चाहिए, लेकिन आप तो जलाल में जलाल आ जाता है आपको नसीम मैं मिल्लत, अभी कमा दिया हूँ, अभी कमा दिया हूँ। है ना। ठीक है, तो जी फिर बाद में बात कर लेंगे, आपका पढ़ाई का टाइम होगा, ठीक है। जी, सलाम। ठीक, सलाम।